Assalamu alaikum. I'm Asadur Rahman, Head of People and Culture at Colabs, and it's been a year I have been working with Colabs. So I have an experience of more than a decade working in HR. Have worked with TTCL, Jazz, and a lot of other organizations. Talking about Colabs, one of the most progressive, flexible workspaces in Pakistan. We are fastly growing, and currently we are opening up Islamabad and Karachi. We are in Lahore with 2,000 seats and 2,000 plus members. So our journey is very fast. We are growing at a very fast pace, and every day is full of challenges and learning for us. And at Colabs, you'll always feel that you have something new to learn every day. Skills and degree is important, but what really matters for me and mostly for any organization is the attitude. Because if you have right set of attitude, then you can teach people how to do and what to do. But if they are not willing to learn, then obviously there would be a problem. So we focus a lot on bringing right set of people with right set of attitude. And once a right set of attitude person is with us, we can teach him or her on doing everything that we want them to do. So skills are obviously important. We look for skills, but our major focus is having a right set of attitude who can last longer with us. Honestly, there is a very huge gap between industry and academia, and that is the reason again that industry is not getting what they are required to have. So one, we need to have constant interaction with academia. If we need to have good resources, then the industry academia linkages are very, very important. We need to ensure that what is our requirement is being produced in academia. At this moment, if industry is requiring, say, an artificial intelligence skill, academia is not focusing on that. So that is important that industry and academia sit together, they devise curriculum together, and then they focus on the development of the students so that when someone is graduating, the industry would have right set of people to onboard them. The current graduates are lacking mostly in the soft side. Attitudes are problem, soft behavioral skills, and they are lacking, and academia is not focusing on that. So if I see we get very good candidates who have very good functional or technical knowledge, but when it comes to representing them, to present them, and how to take them, carry themselves, that is something that they lack, and I believe academia need to focus a lot on this so that they can compete with international graduates and graduates from other countries. अच्छा, वैसे वो वेरी करती रही है usually from say generation to generation, but like mostly अभी आजकल के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एम्प्लॉइज़ के लिए देखें तो कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए. ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन, सैलरी, कॉम्प एंड बेनिफिट्स वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट अगर अच्छा कल्चर नहीं है, लर्निंग नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो फिर एम्प्लॉइज़ डेफिनेटली जो है ना वो मूव कर जाएंगे. तो इसीलिए हमारा फोकस भी, और मोस्टली अगर आप HR डिपार्टमेंट देखें अक्रॉस द बोर्ड, तो उनका फोकस यही है कि वो एक अच्छा कल्चर दें ताकि एम्प्लॉई वहाँ पे आके स्टे करे, एंजॉय करे, एंड देन वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगा. एक तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है कि हम जो हायरिंग है हम उस पर फोकस करते हैं कि हम राइट कैंडिडेट को लेते हैं. सो वंस आपने एक राइट कैंडिडेट को ऑन बोर्ड किया है तो वो चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं कि वो स्टे भी ज़्यादा करेंगे. देन उसके साथ हमारा फोकस उनकी लर्निंग, ग्रोथ एंड इंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा रहता है. हम इंश्योर करते हैं कि उनके पास राइट सेट ऑफ मेंटोरशिप हो, उनको जब प्रॉब्लम हो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स उनको सपोर्ट करें, उनकी गाइडेंस प्रॉपर हो, एंड देन उनको ग्रोथ भी मिली हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एम्प्लॉइज़ को ग्रोथ नहीं मिलेगी तो देन ऑब्वियसली दे लीव. सो उनकी करियर ट्रेजेक्ट्री हमारे पास है. हम फोकस अगेन बहुत ज़्यादा रखते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों वो उनको अच्छे इंसेंटिव मिले, उनको अच्छी बोनसेस मिले, एंड देन उनको ग्रोथ मिले ताकि वो साथ साथ कंपनी के साथ स्टे करें. और हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज़ ने एसोसिएट लेवल पे स्टार्ट किया एंड विद इन 2 years दे बिकेम मैनेजर्स, दे बिकेम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स. सो हमारा यही जो है ना वो फिलॉसफी है. अच्छा, कोलैब्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. अगेन हम क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारा मिशन भी है कि 100,000 एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल करना. सो हम आप हमारी अगर स्पेस विज़िट करें, आप हमारा
ओवरऑल जहाँ पे भी जाएं तो हमारा ये फोकस है कि हम इनेबलमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम कम्युनिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को इनेबल करते हैं, हम अपने मेंबर्स को इनेबल करते हैं कि वो ग्रो करें। उसके लिए हम उनको एवेन्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, हम इन्वेस्टर मीटअप्स करवाते हैं ताकि जो सक्सेस हमें मिल रही है वो ही हमारी कम्युनिटी को, हमारे क्लाइंट्स को और हमारे एम्प्लॉयज़ को मिले। एक अगेन वही बात जो शुरू में भी की थी, इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान, और यूजुअली अगेन जॉब फेयर्स हो जाते हैं, बट दैन जॉब फेयर्स के बाद ना एकेडेमिया साइड से कोई फॉलोअप होता है ना इंडस्ट्री साइड से कोई फॉलोअप होता है, और फिर वो एक फ्यूटाइल एक्टिविटी सिर्फ रहती है कि जॉब फेयर फॉर द सेक ऑफ जॉब फेयर तो हो जाते हैं बट उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। सो इस तरह के इंटरेक्शन, यूजुअल मीटअप, एकेडेमिया को चाहिए कि वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाए टॉक्स के लिए। इवन आई रिकमेंडेड लास्ट टाइम टू माई सीनियर्स एंड से एकेडमिशियंस के जो टीचर्स हैं उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उनको जितना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा वो उतना अच्छा नॉलेज जो है ना वो डिलीवर करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। और इसी तरह इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को बुलाएं, उनको विजिट्स करवाएं, उनको अपनी जो वर्क प्लेस है उसका एक लुक एंड फील करवाएं ताकि लोगों को आइडिया हो कि वो जब कॉर्पोरेट में आएंगे तो उनको कैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या करियर मिलेगा, और दैन ऑब्वियसली फिर ये ग्रो करते हैं। नहीं जी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वर्दी होगा, क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने कहा कि अभी जो गैप आता है वो ये आता है कि अगेन बहुत से स्टूडेंट्स ही टीचर बन जाते हैं। सो वो थ्योरेटिकली दे हैव नॉलेज, लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ है ना उससे काफ़ी गैप नज़र आता है। सो अगर वो इंडस्ट्री में आके वो रियलिटीज़ को फेस करेंगे ना तो फिर वो उतना ही अच्छा नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकेंगे। एंड ये बहुत अच्छी एक स्टेप होगा। ये ग्रेजुअली अगर ये मैच्योर हो और चलता रहेगा तो ऑब्वियसली आप भी फील करेंगे कि आपकी जो नॉलेज डिलीवरी है टू स्टूडेंट्स, और इवन जो टीचर है वो फील करेगा कि वो नॉलेज डिलीवरी बहुत इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि वो एक्चुअल रियलिटीज़ को देन मैच कर रहे होंगे रादर देन ओनली थ्योरीज। आवर इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग रैपिडली, और शेयर्ड सर्विसेज का मॉडल जैसे कोविड के बाद से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ग्रो कर रही हैं। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस या कोवर्किंग दुनिया में तो एक डेकेड से चल रही है, बट हमारे यहाँ क्योंकि अब चैलेंजेस वैसे ही बहुत हैं इन्फ्लेशन के, इकोनॉमी के, सो शेयर्ड वर्क स्पेसेस मॉडल ये ग्रो करेगा, बहुत जल्दी ग्रो कर भी रहा है। आप इंडस्ट्री में देखें तो हर कंपेटिटर हर जगह के ऊपर अब ये मॉडल आ रहा है। इसका एक फ़ायदा अगेन यही है कि आप एक जगह के ऊपर मल्टीपल लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट इंडस्ट्री से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बैठ के कोलैबोरेट भी कर रहे होते हैं, नॉलेज शेयर हो रहा है, बिज़नेस ग्रोथ हो रही है, एंड देन ग्रेजुअली हर कोई जब कोलैबोरेट करता है तो वो फिर एक अच्छी इफेक्टिव इकोनॉमी जो है ना वो जनरेट हो रही है, नॉलेज ट्रांसफ़र बहुत अच्छा होता है। यूएमटी ने पिछले ऑब्वियसली एक डेकेड से बहुत ट्रांसफॉर्म किया और बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ अगेन जिस तरह की ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ नॉलेज बहुत इम्प्रूव हुआ है, क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट बहुत इम्प्रूव हुआ है, और अब यूएमटी के ग्रेजुएट्स आई बिलीव दे कैन कम्पीट विद एनी अदर टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। एंड आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि उन्होंने एक तो रिसर्च पे फोकस किया है और दूसरा इंडस्ट्री पे काफ़ी फोकस किया है, जिसकी वजह से जो ग्रेजुएट्स हैं उनको आइडिया है कि जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको कैसी रियलिटीज़ मिलेंगी, क्या करना होगा, और उसकी वजह से उनकी सक्सेस काफ़ी अच्छी रहती है। एक तो सबको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। हम यूजुअली जब डिग्रीज कंप्लीट करते हैं तो हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम अपने आप को डेवलप नहीं करते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें। अब बहुत सी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज़ हैं, दैन कोर्सेरा, एडेक्स, बहुत वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और बहुत क्वालिटी लर्निंग है इंटरनेशनल लेवल की। सो उस पर फोकस करना चाहिए। हर मंथ, हर क्वार्टर में एटलीस्ट कोई एक बुक इस तरह की चीज़ हो। एंड देन नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल से मिलना। सो हर किसी को चाहिए कि वैसे फोरम्स पर जाए जहाँ पे प्रोफेशनल्स हों, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग हो सके, जहाँ पे नेटवर्क बिल्डिंग हो सके, और ये फिर चीज़ें आगे ग्रोथ में हेल्प करें।